السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ مسلم لیگ نون کے نام رہا یہ مرحلہ کیونکہ 9 نشستوں پر کامیابی نے نون لیگ کے حوصلے بلند کر دیے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کے صرف 4 نشستوں تک محدود رہنے کے بعد جو سیاسی محاذ ہے اس پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے، یعنی سیاسی محاذ اس وقت خاصا گرم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ووٹ پر ڈاکے اور ریاستی فیصلوں کو نون لیگ کے مفاد سے جوڑ کر ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا ہے جو اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں تک سنائی دے رہا ہے، جبکہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کارکردگی بلاول نے دکھائی ہوتی تو پھر ان کو تنقید کا ہمارے پہ وقت نہ ملتا۔ تو یہ لفظی گولہ باری نتائج کے بعد بھی جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں انتخابی شفافیت پر سوال اٹھا رہی ہے تو پھر عوام کس پر یقین کریں؟ کیا ریاست کے فیصلے واقعی قومی مفاد کی بجائے سیاسی مفادات کے گرد گھوم رہے ہیں؟ اگر ووٹ پر ڈاکہ پڑا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر انتخابات شفاف تھے تو پھر یہ گلے شکوے آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں انہی اہم اور حساس پہلوؤں پر ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے اور ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے بھارت میں پیپر لیک محض ایک سکینڈل نہیں بلکہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کے سوال بن چکا ہے۔ نیٹ پیپر لیک کے خلاف جین زی کے طوفانی احتجاج نے مودی حکومت کو مطالبات تسلیم کرنے، مقدمات واپس لینے اور وزیر تعلیم کے استعفے تک مجبور کر دیا، مگر احتجاج ختم ہونے کے صرف 2 روز بعد ایک اور پیپر لیک کے دعوے نے بھارتی تعلیمی نظام پر نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا بھارت میں قابلیت نہیں بلکہ کرپشن امتحانات کا فیصلہ کر رہی ہے؟ اور کیا مودی سرکار نوجوانوں کے اعتماد کا امتحان ہار چکی ہے؟ اس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد جو نون لیگ کو کامیابی ملی ہے اس پر بات کر لیں گے۔ پینل میرے ساتھ موجود ہے، سینئر اینالسٹ اسحار رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ ہیں عامر خاقانی صاحب اور نصیر واگا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اسحار رانا صاحب، آغاز میں آپ سے کرتی ہوں۔ نون لیگ 9 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کو 4 نشستیں ملی ہیں۔ سر، سوال یہ ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر شفاف نہیں ہوئے تو ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر شفاف ہوئے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ بات کریں جو خاصی ناراض نظر آ رہی ہے اور دھاندلی کے الزام لگا رہی ہے۔ سب ایک بڑے اچھے شاعر، ان کے ایک غزل کے 2 شعر سنتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو خواب تھے ہی چنبیلیوں سے سو سب نے ہی حاکم کی بیعت کر لی، جو خواب تھے ہی چنبیلیوں سے تو سب نے ہی حاکم کی بیعت کر لی، پھر اس چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھول نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ جب ساڑی اپنی ویلیج باندھ دی ہے نا، پھر ساڑی چیکا نکل دیا نہیں۔ بلاول بھٹو تب کیوں نہیں بولے ریاست سے مخاطب ہوئے جب ان کو بلا کے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آؤ؟ بلاول بھٹو تب کیوں نہیں بولا جب وہ ایک پارٹی، پاکستان کی سب سے میجر پارٹی کو پابندی لگا دی گئی، نشان چھین لیا گیا، اس کی پارٹی شناخت چھین لی گئی، پھر اس کے بعد 8 فروری کو اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا؟ تب کیوں نہیں بولے؟ آج اپنی باری آئی ہے پھر چیکا نکلنے لگ گئی ہے۔ آج انہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ ریاست نون لیگ کے لیے سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ تو جب آپ کو حصہ اس سارے سسٹم میں ملا، صدر آپ کا، چیئرمین سینٹ آپ کا، گورنر پنجاب آپ کا، کے پی کے کا گورنر آپ کا، بلوچستان میں آپ مل کے حکومت کر رہے ہیں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، آپ کو گلگت بلتستان دیا گیا۔ مجھے تو ان لوگوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے۔ پاکستان میں جہاں بہت سارے بحران آئے نا، معاشی بحران، سیاسی بحران، اس میں سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے۔ ہمارے اوپر کی لیڈرشپ اخلاق بھول گئی ہے، انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کہا تھا اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی حالت تو ایک ایسی اس خاتون کی سی ہے جس کا جبری نکاح ہو گیا ہے، شوہر میں کیڑے نکالے گی، عیبی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، کھلا نہیں لے سکتی کیونکہ بزرگوں کی عزت کا معاملہ اور بچے بھی ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بلاول بھٹو جتنا مرضی چیخ لیں، تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، اگر آپ زیادہ چوچا کریں گے آپ کو سائڈ پہ کریں گے،
इस तरह का पार्टी बीच में आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात है? ठीक है रसाना, अब आपका पॉइंट आ गया। आमिर खाकवानी साहब, सबसे पहले यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कल नून लीग ने मैदान मारा है, पहला मरहला जो था वो नून लीग के नाम रहा है। आप इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं? और फिर बिलावल भुट्टो के जो गिले शिकवे हैं, जिस तरह से अभी एस राना साहब भी बात कर रहे थे कि पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप सर? देखें, दुरुस्त कहा उन्होंने, राणा साहब ने। मेरे पास अब उस तरह के शेर नहीं आते, मुझे अशार याद नहीं है, मैं भी कोई शेर सुना देता। तो देखें, बात ये है, बिलावल भुट्टो साहब की जो तनकीद है इस तरह की, मुझे उस पर कोई वजन नहीं लगता उसमें। वो इस तरह की ही बातें, जहां भी पीएस पार्टी हारती है वो इस तरह की ही बातें करते रहे हैं। तो और देखें, इसमें इलेक्शन में धांधली का मैं तो नहीं बस अंदाजा ऐसे रिपोर्ट से, क्योंकि इलेक्शन और तरह के हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बड़ा मसला बना है कि तहरीक इंसाफ को ने इसका बाइकाट किया, वो शामिल नहीं थी, तो वो एक बड़ा फैक्टर ज़ाहिर बना। तो मुकाबला वहाँ दो ही पार्टियों का था, वहाँ नून लीग का था और पीएस पार्टी का था। तहरीक इंसाफ अगर मैदान में होती तो सिचुएशन मुमकिन है मुख्तलिफ होती, मौसम कुछ हल्कों में। तो जहाँ पीटीआई का जो वोट बैंक है वो फिर वहाँ पे लोग निकले नहीं है, डिवाइड हुए हैं, तो नून लीग का फायदा हुआ। देखें, आमतौर पे हमने देखा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इवन जीबी में भी होता है, वैसे इस दफा उतना नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वफाकी हुकूमत जो होती है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, इस्लामाबाद हुकूमत होती है, उसका काफी एडवांटेज उसके हक में जाता है। जो भी रीजंस हैं, कुछ चीजें उस तरफ मैनेज हो जाती हैं या जो भी होती हैं, लोग बहरहाल आमतौर पे वही हुकूमत आती है। बल्कि हमने तो ये देखा है कि कश्मीर में अच्छी हुकूमत चल रही होती है, जब इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील होती है तो पता लगता है कि वहां से किसी न किसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई जोड़ तोड़ हो जाता है, कोई मुख्तलिफ फार्म गुलाग बन जाते हैं, ग्रुप बन, जैसा हमारे यहाँ होता है, लोगों में जमीर जाग पड़ता है और फिर वही वफाक अली हुकूमत ही आ जाती है। तो ये तो सर, ये तो चीजें सामने हैं। लेकिन भारत नून लीग ने काफी ज्यादा सीटें जीती हैं, में से 13 में से 9 सीटें जीतना, और ऐसे लग रहा है मुझे कि नून लीग की मेजॉरिटी होगी, क्योंकि आगे मुजफ्फराबाद में भी जो अगला मरला है आपको पता है, वो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और फिर ये जो कश्मीरी सीटें हैं महाजरीन की 12 सीटें पाकिस्तान में, उसमें भी पंजाब में कम से कम कई सीटें हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की इम्कानात काफी वाज़ेह हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नसीर वाक़ा साहब, नून लीग की इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देते हैं? क्या इंतखाबी मुहिम बहुत अच्छी चलाई, क्या लेगेसी बहुत अच्छी छोड़ी, गवर्नेंस बहुत अच्छी रही, कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, क्या किसको क्रेडिट देते हैं आप? देखिए, यकीनी तौर पर चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और इसका असर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर हमेशा हावी रहा है। अच्छा। ये हमारी तारीख़ बताती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक अहम बात ये है, मुझे ये बताइए कि मेरी अपनी जर्नलिज्म की जो टोटल लाइफ होगी या जो मेरा अरसा होगा वो तकरीबन 27-28 साल होगा, मैंने आज तक किसी भी लीडर को, बड़े लीडर की बात कर रहा हूं, ये नहीं सुना कि वो अपनी हार को तस्लीम करके अब जीतने वाले के जाकर गले में फूल डाले। आप मुझे बताइए कि जब अमेरिका का सदर हारता है तो वो जाके खुशी से उसको गले मिलता है, उसको मुबारकबाद देता है। हम लोग क्या मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को? आप मुझे बताइए, अगर बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि रिगिंग हुई है, आप देखिए तूफान खड़ा हो गया, तो मुझे बताइए उनकी 4 जो अपनी सीटें हैं, फिर वो रिगिंग नहीं है। इसका मतलब है वो 4 ठीक हैं और जो नून लीग की 9 है वो गलत हैं। सारी जिंदगी इन्होंने इसी तरह लड़ते झगड़ते रहना है। हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप देखिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं। वो कहने जी आप गलत कर रहे हैं, वो कहने जी रिगिंग हुई है, जालसाजी हुई है, धांधली हुई है। ये जो तनकीद हम अभी इलेक्शन में देख रहे हैं, तो फिर ये विफाक में क्यों नहीं तनकीद करते? हाँ। वहां पे तर्ज़े हुकूमत जो है उस पे भी तनकीद करें। अच्छा देखिए, वहां ये इत्तेहादी हैं। अच्छा, कैसी मैं हैरान हूं कि ये लोग क्या, वहां पे ये इत्तेहादी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कौमी असम्बली में सदर उनके वालिद साहब हैं, यानी आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और बेनजीर भुट्टो के जो बेटे हैं, आप देखें ना, वो पूरा उनका कंट्रोल है सिंध पे, वजीर आला उनका, पूरी कैबिनेट उनकी, सारा कुछ उनका। वहां तो वो बिल्कुल खामोश हैं कि वहां क्या हुआ। तो क्या ये सारी जिंदगी धांधली के इल्जाम लगाते लगाते तो फिर पूरी दुनिया कहेगी, यूरोप कहेगा, अमेरिका कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, सारी दुनिया कहेगी कि इसका मतलब है पाकिस्तान में होने वाले तमाम इलेक्शन आज तक धांधली ज़दा हैं और झूठ हैं और फ्रॉड है। हम अपने गिरेबान में जब झांकेंगे कि हम अपने मुल्क के बारे में क्या तासुर देंगे, क्या वो हमें ये नहीं कहेंगे? आप वो लोग हैं जो एक
ایک بھی الیکشن کو آج تک آپ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. ہمارا کون سا بڑا لیڈر ہے جس نے جا کے دوسرے کے گلے میں ہار پہنائے ہیں؟ ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہے. یہ ویسے مثال ابھی تک قائم نہیں ہے. میں نے تو ابھی میں نے ایک آدھ صرف مثال دیکھی ہے. میں لاہور کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر نے کہا نہیں, میں جس طرح آپ مجھے جتوانا چاہتے ہیں میں نہیں جیتنا چاہتا, بالکل میں ہارا ہوا ہوں. اور جو دوسرا ہے, میں خواجہ سعد رفیق کی بات کر رہا ہوں, میں یہ گریٹنس ہے ان کی کہ انہوں نے کہا کہ سوری میں بالکل ہار گیا. اس کو کہتے ہیں سیاست. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ابھی الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور آپ نے ایک دوسرے کے اوپر گند پھینکنا شروع کر دیا؟ ابھی کشمیر میں وہی لیڈ کر رہے تھے کیمپین بھی. دیٹس دا لیڈرشپ اسپرٹ, اور یہ ہونی چاہیے, یہ ہمیں پالیٹکس میں بھی نظر آنی چاہیے. اچھا اسارانہ صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو لفظی وار کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے, اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے کارکردگی دکھائی ہوتی تو انہیں تنقید کا وقت نہ ملتا. کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کارکردگی کی بنیاد پر جیت ملی ہے نون لیگ کو؟ نہیں, مریم کی تو خیر کارکردگی ہے, ایمانداری کی بات ہے. میرے گھر کی لائٹ گئی رات 12 بجے, میں حالت صبح 10 بجے آئی تھی, اور یہ ہر دوسرے دن ہوتا ہے. کارکردگی میں تو پنجاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ابھی تک کئی جگہوں سے پانی نہیں اترا. پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اس کے متاثرین آج تک اسی حالت میں, اب نیا سیلاب اور آنے والا. کارکردگی کا تو عالم یہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 17 ارب روپے لوگوں سے صرف موٹر سائیکلوں کے جرمانوں پہ لے لی تقریباً, جو مجھے کیلکولیشن ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کس کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. 1200 کروڑ روپے کا جو طیارہ آپ نے لیا ہے وہ کارکردگی ہے, یا ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جا کے کسی جگہ بیٹھ کے انتخابات پورا لڑتی ہے اور الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا, وہ پری پول ریگنگ کرتی ہے, 10 بسیں منگا کے میرے سے پوچھے بغیر میرے ٹیکسوں کی وہ بسیں ہیں. مجھے تو یہاں پہ وہ جو بس چل رہی ہے اس کے اے سی بند ہوئے میں لوگ بے ہوش ہوتے پھر رہے ہیں. یہاں سے آپ 10 بسیں وہاں پہ گرین بسیں وہاں پہ بھیج دیتے ہیں, الیکشن کمیشن پھر خاموش ہے. 16,000 پولیس اہلکار پنجاب سے چلے جاتے ہیں, وہ جا کے پورا, آپ ذرا اس بات کو نفسیات کو سمجھیں. 16,000 پنجاب کی پولیس ایک جگہ موجود ہے, ان کی وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود ہے, ان کا قائد وہاں پہ موجود ہے, اور وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی پری پول ریگنگ اور کسے کہتے ہیں. لیکن اگر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں کہ ہاں اگر آپ یہ ساری نوازشات کریں نون لیگ پہ, اگر اس نے نون لیگ نے کوئی ڈیلیور کیا ہوتا نا تو میں بھی چپ ہو جاتا کہ یار ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر کچھ. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کو ان کے پاس ہے نہیں, اسکولوں سے بچے اٹھا رہے ہیں, بیٹیاں گھروں میں جہیزوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی, شرفا کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی ہیں کام کے نام کے اوپر. کس کارکردگی کی بات کر رہے ہیں؟ 40% سے اوپر غربت چلی گئی. آپ 8,500 والے کو کہتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے. آپ کے کتا جو خوراک کھاتا ہے وہ 8,500 سے زیادہ کی ہے, اس کے گلے میں جو پٹا ڈالا ہوتا ہے وہ 8,500 سے زیادہ کا ہوتا ہے. اگر یہ کارکردگی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, کارکردگی پہ آپ ووٹ لیں, آپ کا حق بنتا ہے. یہ کارکردگی ہے کہ لوگ پنجاب میں, پورے پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جو جینزی ہے ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. جینزی جو ہے وہ نشوں میں لگ گئی ہے. تھوڑوں پہ آئے لاہور میں دکھاتا ہوں میں آپ کو. خاقانی صاحب, تنقید کا نشانہ نون لیگ کو بھی اور مریم نواز کو خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. بلاول بھٹو کے بعد ہمیں شرجیل انعام میمن صاحب بھی منظر عام پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. مسلم لیگ نون کی حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز نے بات کی ہے وہ بڑی تکبرانہ بات کی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پرفارمنس کو, اور پھر جو پیپلز پارٹی ہے اس کا جو غصہ کم نہیں ہو رہا بلاول کے بعد, شیری رحمان کے بعد اب شرجیل میمن بھی سامنے آ گئے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے, پھر تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو 10 بار استعفے دے دینے چاہیے. مطلب سندھ کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے, تباہ کر کے برباد کر رکھ دیا کراچی کو انہوں نے. جس شخص نے کراچی میں کچھ بھی ٹائم گزارا ہے تو پچھلے چند سالوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو عبرت کا ایک بالکل محسوس احساس ہوتا ہے. ایسے خوف آتے ہیں, سڑکیں تباہ, انفراسٹرکچر تباہ, ہر جگہ پہ خوف. ہر وقت گھر سے نکلتے وقت کیوں پتہ نہیں بندہ واپس آتا ہے, گھر نہیں آتا, موبائل چھینا جائے گا, کوئی ڈکیٹی ہو جائے گی, واردات ہو جائے گی, برباد کر کے رکھ دیا سندھ کو. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو سچی بات ہے شرم آنی چاہیے پرفارمنس کی, اور شرجیل میمن کو اور جو لوگوں کو بات کرتے ہی افسوس ہونا چاہیے. مطلب ان کا تو بالکل بنتا ہی نہیں نا, پیپلز پارٹی کا تو بالکل نہیں بنتا یہ بات تنقید کرنے کی. جب ویسے سچی بات تو یہ کے پی میں بھی
कि वो तहरीक इंसाफ की वहाँ भी हुकूमत इतने लंबे अरसे से चली आ रही है, परफॉर्मेंस इनकी बहुत बुरी है। राणा साहब ने ठीक कहा, पंजाब में कई चीजें, बहुत सी चीजें ठीक होने वाली हैं, और ज़ाहिर बड़े बड़े इशूज हैं, जिस तरह इन्होंने 3 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ जितना भी डाटा है, क्योंकि मुख्तलिफ फिगर्स हैं, बच्चे स्कूल से बाहर हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, और सैलाब के मामले में ठीक कहा उन्होंने, अब फिर खतरा सैलाब का आ रहा है, तो उसमें इंतजामिया में सबसे मसाइल हैं बहुत सारे पंजाब में भी, लेकिन केपी और हुकूमत की भी परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कर रही है, और सिंध की तो खैर सबसे बुरी हुकूमत रही है, तो सिंध में तो बिल्कुल बात बनती नहीं है। पंजाब में ये अलबत्ता हुआ है, कुछ चीजों में कुछ चीजें बेहतर रही हैं, मतलब तजावुज़ात के खिलाफ काफी अच्छी कैंपेन रही, काफी कामयाब रही। मैंने तो बहरहाल पहली दफा देखा लाहौर में, मतलब तवील अरसे से, मैं 31 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, मैंने तजावुज़ात की पहली कैंपेन देखी जो इतनी मौसर हुई, और बड़े बड़े बाजार जो शहर के थे, जो बिल्कुल जहाँ पे चलना ही मुश्किल था, वो चीजें बेहतर रही। उससे लाहौर में नहीं हुई, ये छोटे शहरों में भी हुई, मतलब, और जो उत्तरा पंजाब के तहत हमारे इसमें करप्शन हुई होगी, इस तरह स्कैंडल्स भी आते रहते हैं, लेकिन अहमदपुर शर्किया छोटा सा शहर है, मतलब तहसील है पुरानी पंजाब की, लेकिन बिल्कुल लाहौर से वो 5 घंटे के सफर पे है, फासले पर है, तो 350-400 किलोमीटर बनता है, वहां पे भी साफ सुथरा हुआ है शहर, यानी कुछ चीजें तो बेहतर हुई है, इंतजामी बेहतर, लेकिन भारत बहुत सी चीजों में गुंजाइश है और होनी चाहिए। When it comes to comparison पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, तो आप ये कह रहे हैं कि नून लीग फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रही है जो हमें नजर आ रहा है। वाक़ई साहब, आप क्या राय रखते हैं? शर्जील इनाम मेमन इस्तीफा मांग रहे हैं मरियम नवाज से, जस्टिफाइड है? कैसी अजीब बात है कि जिस पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद है उन्हीं की चीफ मिनिस्टर से वो इस्तीफा मांग रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, तो वो कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, तो फिर ये कौन फैसला करेगा? इसका मतलब है दोनों ही गलत इलेक्ट हुए हैं। अपने आप के ऊपर जालसाजी का ठप्पा ये क्यों लगाते हैं? मैं हैरान इन बातों से हूं। देखिए, मरियम नवाज के बारे इस बात पे तो मेरा ख्याल है लोगों को मानना चाहिए कि उसने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का पूरा जोर लगाया है, और उसने बहुत काम किया है। जैसे खाकवानी साहब ने कहा है, ये जो उन्होंने तजावुज़ात ख़त्म किए हैं हर शहर में, ये अलहदा बात है कि पीरा उसको मिसयूज़ कर रही है। उसका पहले डिज़ाइन ही किसी ने नहीं किया कि ये जो गरीब लोग हैं इनको अगर यहाँ से उठाना है, अगर तजावुज़ात ख़त्म करनी है, तो जो तजावुज़ात पे बैठे हुए थे हमने उनको अल्टरनेटिव क्या देना है? ये है असल नाकामी उसकी, जो उसके आगे मशीनरी है वो उसको इस तरह मिसगाइड कर रही है कि चीफ मिनिस्टर जब कह देती है ना कि इस बाजार की ऐसी की तबाह कर दो, भाई तबाह से मुराद है सारी तजावुज़ात खत्म कर दो, वो उनको ये कहने की जुर्रत ही नहीं करते कि मैडम यहाँ इतने गरीब लोग बैठे हुए हैं, सारा आपका वोट बैंक तबाह हो जाएगा, लोग दिली तौर पर आप खिलाफ हो जाएंगे, प्लीज हम इनको कोई अल्टरनेटिव जगह तो दें, कोई इनको रेडियां लगा दें, कुछ जगह लगा दें, उसके बाद अगर ये खाली नहीं करते तो हम इनके ऊपर बुलडोजर चला दें। यहां आके खराबी पैदा होती है। यानी अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं मरियम नवाज की नीयत पे जरा भी शक नहीं करना चाहता। मरियम ने जैसे सीसीडी बना के जो क्राइम कंट्रोल किया है, अब देखें अगर अगले उसको मिस यूज करें तो मरियम का इसमें क्या कसूर है? अगर सीसीडी के कुछ अफसरान अपनी मर्जी से लोगों को, वाकई साहब ब्रेक पे जाने, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। ये जो नताइज हैं इत्तेहादी सियासत में दरार तो नहीं डाल रही है? या डाल चुके हैं ये जो नताइज आए हैं पहले मरहले के? हाँ, देखिए ना, अगर बिलावल भुट्टो ये बात करते हैं तो फिर इत्तेहाद तोड़ क्यों नहीं देते? फेडरल गवर्नमेंट में अलहदा बैठ जाए ना, अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाए, वहां तो नहीं बैठते। साहब ने जो मिसाल दी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन वो तो नहीं करते। चलें सही, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो हम बात करें, लेकिन हम आईपीपी का जिक्र नहीं करें। ब्रेक के बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे, हम उनके नैरेटिव की बात करेंगे और कहाँ आईपीपी स्टैंड करती है उस पर भी हम बात कर लेंगे और पैनल की राय जान लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में आईपीपी भी जो थी वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ थी, और ऐसा लग रहा था कि अगर पीटीआई मैदान में मौजूद नहीं है तो शायद कोई एज आईपीपी को मिल जाए। इसाराना साहब, सवाल ये है कि आईपीपी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पे स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है, और ये जो इंतखाबात हुए इनमें कैसे देखते हैं आप इन्हें? ये आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा होगा, उसमें जो खिलाड़ी बुरा खेल रहा होता है तो फिर पहुंचना कहता है कि जी आप वार्म अप हो, आपने ग्राउंड में जाना है, फिर वो एक दिखाते हैं कि इतने नंबर का खिलाड़ी बाहर आ गया, अब इतने नंबर का खिलाड़ी अंदर जा रहा है। पीपल्स पार्टी को बाहर बुलाने का वक्त हुआ चाहता है और आईपीपी को मैदान में उतारने का वक्त हुआ चाहता है। तो आईपीपी के साथ तो बस इतना ही काफी है। माशाल्लाह देखे ना, अल्लाह ताला की बड़ी वो है कि गिलगित में एक बांझ औरत के घर 4 बच्चे हो जाते हैं, वो पता चलता है जी उन जो वोटनी का 4 मेंबर उसके बन जाते हैं आके अरकान असेंबली। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है इसमें
पीपल्स पार्टी जरा सी चूंचा करेगी, इस्तेकाम पार्टी बीच में आ जाएगी। हालांकि पीपल्स पार्टी का जब जबरी निकाह हुआ था तो बुजुर्गों ने कहा था कि अब तेरी डोली जा रही है, अब तेरी लाश ही निकलनी चाहिए वहां से। अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा निकलते हैं या मुर्दा। तो सर फिर क्या मज़ीद आप देख रहे हैं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो फिर एक दूसरे पर तनकीद कर रही है, इन दोनों को आप कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? किताब कभी भी खतरे में नहीं आएगा। देखिए बच्चे आपस में लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के, हमारे घर में अपने बच्चे लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। शाम को अब्बू आते हैं, वो कहते हैं कि दोनों को डांट डपट करते हैं, वो कहते हैं चलो गले मिलो, वो दोनों गले मिलकर रोटी खाने लग जाते हैं इकट्ठी। सही, तो हाथ कायम रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत ज्यादा अगर हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, अगर दोनों बहुत ज्यादा ही लड़ाई हुई तो पीछे से आवाज आएगी कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और गब्बर अगर आ चलें तो चलें फिर सबको पता है क्या खाकवानी होगा। साहब आईपीपी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, और क्या कुछ उम्मीद थी, क्या आपको लगता था कि कोई सरप्राइज मिलेगा हमें कल जो नताइज आएंगे, या फिर जो एक्सपेक्टेड था वही नताइज आए हैं? देखिए सच्ची बात तो ये है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। ये तो एक तरह की किंग्स पार्टी रही है, जैसे ग्रुप रहा है जो यहाँ पे कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाए, मतलब पार्टी तो नहीं है ना। कौन सी पॉलिटिकल सरगर्मी है या कोई पार्टी का स्ट्रक्चर है, या उनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिसे आप कहें कि ये प्रॉपर पॉलिटिकल लीडर है या कोई सियासी सर। मतलब आप बता कश्मीर में वहाँ पे जीपी में भी इनको कुछ सीटें दिलवाई गई हैं, वो भी सबको पता ही है कि क्या दिलवाई गई है, और यहाँ तो क्या उनका फ्यूचर होना है। मतलब खुशी इस बात की है मुझे कि कम से कम इनको तो नहीं मिला ना। नून लीग को और पीएस पार्टी को चलो जो भी हैं वो 12 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, साथ कश्मीर में भी ये पॉलिटिक्स एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। इनके जो लोग जीते हैं, कोई पुराने इनके पार्लियामेंटेरियन भी हैं जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल लोग हैं, लोकल लोग हैं, मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाली वहाँ की शख्सियात हैं, सियासी लोग ही हैं। तो अच्छे हों बुरे हों जो भी है वो एक सिस्टम तो है ना। आईपीपी अगर पॉलिटिकल सरगर्मियां करे, कोई इसका पूरा एजेंडा हो, पॉलिटिकल अवाम में जाए, ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन जीते, वोट ले, तो हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल इस तरह ही, इस तरह के जमाने में जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में काफ लीग बनी थी, या ऐसे मुख्तलिफ ग्रुप किसी के दौर में बन जाती हैं, तो फिर कहाँ होते हैं, आपको पता है कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आईपीपी का भी यही है। तो मेरा तो ख्याल है ये तो यही तो थी मेरे वैसे अपनी मालूमात ये थी, अंदाजा यही था कि नून लीग को एज होगा थोड़ा सा। अच्छा। तो और मुकाबला इन दोनों के दरमियान भी लग रहा तो था। खाकवानी साहब तो वैसे ही हुआ, बस ये एक जो विफाक में इत्तेहाद है वो खतरे में तो नहीं लग रहा, या ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं, ये इत्तेहाद अच्छा। कहाँ खतरे में होना है। जिन्होंने इत्तेहाद बनाया है, जब तक वो चाहेंगे इत्तेहाद कायम रहेगा, वो अगर चाहेंगे इत्तेहाद टूटना तो टूट जाएगा। चलिए, फिर तो खतरा क्या वागा साहब पहले आईपीपी के बारे में बताएं फिर इत्तेहाद के बारे में। देखें, आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के, मुझे नाअहल समझ लें, नालायक समझ लें, या जो भी आप समझ लें। अभी वक्फे के दौरान मैंने जवेरिया से पूछा ये आईपीपी भला कौन सी पार्टी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जिस पार्टी जो हमें याद भी नहीं है, इन्होंने मुझे बताया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। मैंने कहा अच्छा वो लोग जो पीटीआई से निकल के जिन्होंने अलीम खान पार्टी, अच्छा ये तो वो पार्टी है। हाँ अच्छा, मुझे तो 1% भी यकीन इस पे नहीं था कि ये कोई आधी सीट कहीं शायद इनको पूरे अपने उम्मीदवार भी ना मिले। तो कहाँ वो कहते हैं ना, एक आपने बात सुनी हुई होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वो भाई कहाँ से वो निकले, कहाँ आए, कौन सा आईपीपी। ना तो ये पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, और नून लीग का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब जिन लोगों ने ये बनवाई, उनका ख्याल था कि शायद चूंकि वो हमारे पीछे हैं और वो हमें बहुत सारी सीटें दिलवाएंगे, उनको तो उन्होंने सीटें नहीं दिलवाई। इससे भी एक बात का यकीन होता है कि कितना ये शायद इलेक्शन बहुत फेयर हुआ हो, वरना आईपीपी को कोई 1-2 ही सीटें चलो दिलवा कर कोई उनकी इज्जत रख लेते, वो भी नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब अपनी जगह पर कहते फिरते हैं कि जनाब बहुत बड़ी रिगिंग हुई है, और मुस्लिम लीग नून को, अब ये देखो उन्होंने कहा है जी जो हर फैसला है वो नून लीग को तरजीह। ओ भाई, तो फिर आप असेंबलियों में क्यों बैठे हैं? आप फौरी तौर पर रिजाइन करें। आपने कहा जी हर बात तो नून लीग की मानी जा रही है, तो आपने क्या जो 4 सीटें ली हैं वो मेरिट पे ली हैं? कभी जरा बैठ के देखें कि आपको कैसे सीटें मिली हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें
کہ آپ کو 4 سیٹیں وہاں دی گئیں یا دلوائی گئیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور نون لیگ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو 9 سیٹیں وہاں سے مل گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ونر قرار دیا. یہ کیسے ونر قرار دیا یہ ساری دنیا جانتی ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. میرا خیال ہے ایسے موقع پر تو ان کو دوسروں پہ تنقید کرنی ہی نہیں چاہیے. چپ کر کے جتنی سیٹیں ملی ہیں ان کو ہضم کریں اور پاکستان کے سیاسی حالات خراب نہ کریں. خاموشی سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے وہ یہ کہ وفاق میں جو اتحادی ہیں وہ ہمیں آزاد کشمیر انتخابات میں ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے گلگت میں بھی دیکھا تھا. اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا نون لیگ کو گلگت کی کمپنسیشن تو نہیں ہوئی، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ لفظی گولہ باری ہو رہی ہے یہ سب کچھ پری پلان تو نہیں ہے؟ پینل کی رائے اس پہ جانیں گے، ابھی بریک پہ جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کا پہلا مرحلہ، اس کے نتائج آ چکے ہیں، اسی کو آج پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پینل میرے ساتھ ہی موجود ہے. خاقانی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سوال میں چھوڑ کے گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا پری پلانڈ ہو رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں پری پلان تو کیا کہنا، یہ اس حد تک تو یہ بالکل پلان نظر آتا ہے اور آج نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں اس کے خلاف بات کرتی ہیں، تنقید کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں، اور زمانہ بہت پرانا بھی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نے زردار بابا کو گھسیٹنے کا اور کیا کیا باتیں کی تھی. پی ایس پارٹی والے بھی سخت بات کرتے رہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی کبھی سندھ پی ایس پارٹی پہ تنقید کرتی ہیں، کبھی وہ پنجاب پہ حملہ ور ہوتے ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے ان کا. اور جب الیکشن ہو جاتا ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر نارمل ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے مسئلے مسائل بھی حل کرتے ہیں. پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس کی پروموشن ہو رہی ہے پی ایس پارٹی کی، ہم ہی بیوروکریٹس کو بھی موقع ملے اور باقی ہر جگہ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، سب چیزیں خوشی خوشی کرتے ہیں. تو یہ ویسے ہی پروسیس ہے. جی بی کے الیکشن ہو گیا کشمیر کو، آپ دیکھیں کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اگر جب الیکشن اگر بلدیاتی الیکشن کی نوبت آئی پنجاب میں پھر یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، یا جب کوئی اور اس طرح کا جب جنرل الیکشن ابھی تھوڑا ٹائم ہے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں، اس حوالے سے تو پلانڈ ہے. تو باقی یہ اسکرپٹ میں خیال ہے تھوڑا سا آزاد کھلا کھلا ڈھیلا ڈھالا سا اسکرپٹ ہوتا ہے. بلاول کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کی کچھ فکرے بول سکیں، اور جس طرح وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، آپ تو اسمارٹ کافی ہو گئے ہیں لیکن جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، فکرے کستے ہیں، بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کرتے رہے اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں. یہاں سے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے. تو بہت فیمس ہو گئے ہیں. مریم نواز ان کو ریپیٹ بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے انتخابی مہم میں بھی ہم نے دیکھا. اچھا خاقانی صاحب، سیاسی جماعتیں اگر ان نتائج کو نہیں مان رہی تو سوال یہ ہے کہ پھر عوام کیسے مانیں گے ان نتائج کو؟ میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں مانیں گی. آپ بے فکر ہیں کوئی آپ دیکھیے گا اب یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ، یہ اگلے میں یہ سمجھ ہے کہ یہ فرق پڑا ہے کہ 9-4 کا فرق کافی ہے. اگلا جو مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہونے ہیں اور پھر جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان میں جو کشمیری مہاجرین والی جو حلقے ہوں گے وہ جو باقی صوبوں میں ہیں تو وہ والے ہوں گے. اس میں پھر ممکن ہے پی ایس پارٹی کو تھوڑا سا ان کی اشٹ ہوئی جیسے کہتے ہیں وہ کر دی جائے، تھوڑا سا کمپنسیٹ وہ یہاں پہ ہو جائے. تو یہ چلتے رہیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے نون لیگ کا ہی انتخاب ہو گیا ہے، میجارٹی اس طرح ان کی بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے جس طرح چیزیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں بہرحال کسی وہاں پی ٹی آئی تو الیکشن لڑ نہیں رہی نا وہاں پہ، اور استقامت میں پاکستان پارٹی اس طرح ہم نے کہا کوئی پولیٹیکل فیکٹر ہے ہی نہیں. تو الیکشن میں بائیکاٹ کا جو اپیل ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہوئی، اتنا بائیکاٹ نہیں ہوتا، اور ہو بھی صحیح تھوڑا سا ٹرن آؤٹ ہو تب بھی الیکشن نہیں ہوتا نا، ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پارٹی اور نون لیگ کے دونوں میں سے الیکشن ہے. نون لیگ کا نے وعدے تو نواز شریف صاحب نے کافی سارے کیے ہیں وہاں پہ وفاق میں، اور سب کو پتا ہے کہ وفاق میں جو کہ وزیر اعظم ہیں تو یہ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. تو اور ان کی کینڈیڈیٹ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، تگڑے کینڈیڈیٹ تھے ان کے. تو وہ الیکشن تو انہوں نے کتنے جتنا تو تھا نا، ان دو میں سے کسی ایک نے تو سیٹیں لینی تھی. مقابلہ اچھا خاصا، آپ دیکھیں نا ووٹ دیکھیں اچھے خاصا مقابلہ ہوا، ایسا نہیں کہ بالکل یک طرفہ ہو. دیکھتے ہیں اگلے جو 2 مراحل ہیں ان میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں. مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں سارانہ صاحب. ایک تو یہ کہ اس پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں پہلے مرحلے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اثر انداز ہوں گے باقی 2 مراحل میں جو نتائج آئیں گے اس پر؟ دیکھیں 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی قومی اسمبلی میں انہوں نے بہت واضح اکثریت حاصل کی، اور 2 دن بعد 1 دن بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے. تو پورے پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ کے نعرے لگائے لکھے گئے، اور نواز شریف صاحب پنجاب کا سارا الیکشن جیت گئے. تو پاکستان میں ایک لمحے میں کچھ ہو سکتا ہے. جہاں بے نظیر بھٹو نیشنل لیول پہ اکثریت حاصل کرتی ہیں، اگلی دفعہ اگلے ہی دن ایک بار
ये दुनिया की अनोखी साइंस है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, जिसमें अगले दिन पूरी कौम का मिजाज एक रात सोते हुए बदल गया और जनाब सुबह उनका नहीं हमारा तो कायद नवाज शरीफ है, हमने उसे वोट देने। पाकिस्तान में इंतखाबात बस इसी तरह के होते हैं, आप किसी खुशफहमी का शिकार ना हो कि ये कोई बड़े अमेरिका के या तो, हालांकि अमेरिका के इंतखाबात में भी फ्रॉड होता है। पिछली दफा भी फ्रॉड से 2-3 रियासतों के इंतखाब जो रिजल्ट थे वो मैनिपुलेट किए गए। वहाँ पूरी दुनिया में जमहूरियत के नाम पे एक बार ड्रामा है, बस कहीं पे ज्यादा है कहीं थोड़ा। वाक़ई साहब अग्री करेंगे आप इसार राना साहब की इस बात पे? और फिर ये जो पहली दफ़ा मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं सर, आपको लगता है कि असरअंदाज होंगे इसके नताइज, आने वाले मरहले के जो नताइज हैं उस पर? आपको अपनी कौम का तो पता ही है, जब एक दफ़ा उन्होंने 9 सीटें जीत ली हैं तो अब यकीनी तौर पर ये असरअंदाज होंगे अगले इंतखाबात। नफसियाती बढ़तरी भी हासिल हो गई यकीनी तौर पर। एक तो नफसियाती बढ़तरी और फिर माशाअल्लाह हमारे लोग। अभी राणा साहब जो अमेरिका की मिसाल दे रहे थे, बिल्कुल वहाँ कुछ फ्रॉड ज़रूर हुआ होगा लेकिन इतना नहीं जितना पाकिस्तान में होता है। यहाँ तो बिल्कुल रिजल्ट्स जो हैं वो उल्टे पुल्टे होते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अगर अवाम ना माने तो अवाम ना माने, नहीं मानती तो ना माने। भाई वंस इलेक्शन इज अनाउंस्ड, जो विनर है वो विनर है, जो हार गया वो हार गया। वो अगले 5 साल अदालतों में धक्के खाता फिरे, वो कहे कि मेरी रीकाउंटिंग कर ले, मैं तो जीता हुआ हूँ। आप देखें टेन्योर गुजर जाएगा लेकिन उसका फैसला नहीं होगा। आप किस मुल्क की बातें कर रहे हैं? कौन से इंतखाबात, कौन सी जमहूरियत? भाई सारी दुनिया को पता है जो जमहूरियत पे अमल दरामद करते हैं, जहाँ इलेक्शन ठीक होते हैं वहाँ पूरी उनकी अवाम उसको एक्सेप्ट करती है। हमारी अवाम कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो PTI हो, वो नून लीग हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जब भी इलेक्शन होते हैं उनके अपने ही लीडर अपने ही इंतखाबात पर ऐसे ऐसे धब्बे लगा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बयानात दे रहे होते हैं कि सारी दुनिया हंस रही होती है कि ये कैसी कौम है जो अपने इंतखाबात पर, मैं मेन लीडर्स की बात कर रहा हूं, बड़े लीडर्स जो हैं। अच्छा वाक़ई साहब, आपने अवाम की बात की, डेमोक्रेसी की बात की। हमने अपने तालीमी दौर में तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यही सवाल मैं साराना साहब के सामने रखना चाहूँगी। साराना साहब ये बताएं कि अवाम इन नताइज को कैसे तस्लीम करेगी? सियासी जमातें तस्लीम नहीं कर रही हैं। आपकी नजर में अवाम मैटर करती है? आपकी नजर में तो फिर अवाम माने ना माने से 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अवाम ने क्या कर लिया, मुझे बताएं। जब अवाम ने एक मैंडेट दिया और वो मैंडेट नहीं हुआ तो अवाम ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है, आई एम सॉरी टू से, इनके DNA में प्रोटेस्ट नहीं। किसी को बुरा लगे भला लगे, मुझे कोई वो उससे नहीं, हमने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारे DNA में ही नहीं है। सदियों से गुलाम लोग हैं, कभी हम पे आके मुगल हुकूमत कर जाते हैं, कभी हम पे आके आर्या बैठ जाते हैं, कभी हम पे आके लोधी बैठ जाते हैं, कभी हम पे आके अफगानी आके बैठ जाते हैं, कभी हम पे कोई सिख आके बैठ जाते हैं। हमारा काम है उनको GIN कहना, तो हमसे। अच्छा, प्रोटेस्ट की आपने बात की, वाक़ई साहब 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसके फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? लोग निकलेंगे, क्या होगा, कैसा होगा ये प्रोटेस्ट? देखें, प्रोटेस्ट वहाँ होता है, उन कौमों में होता है जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ प्रोटेस्ट करने दिया जाए। ओ भाई, यहाँ प्रोटेस्ट करने की किसी को इजाज़त ही नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक तो नहीं है। जब कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो अपनी मुखालिफ पार्टी को किसी सूरत भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देती। अगर PTI बरसरे इक़्तिदार थी तो उसने भी यही काम रखा, नून लीग थी उसने भी यही रखा, पीपल्स पार्टी जहाँ होती है, आप सिंध में कहाँ की डेमोक्रेसी? तो ये कौन सी डेमोक्रेसी? आपको इजाज़त ही नहीं प्रोटेस्ट करने की। जो प्रोटेस्ट करेगा वो सीधा जेल में जाएगा, ना उसकी मुलाकात होगी ना उसकी जमानत होगी, बच्चे रुल जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहेगा
जब इस प्रोटेस्ट का कोई असर ही नहीं होना तो मैं अपनी बर्बादी और अपने खानदान की तबाही के ऊपर खुद दस्तखत क्यों करूं? प्रोटेस्ट जिंदा कौमें करती हैं। माजरत के साथ राणा साहब ने कहा हमारे डीएनए में प्रोटेस्ट नहीं, हमारे डीएनए में प्रोटेस्ट तो है, लेकिन हमारे अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया गया, इतना डर, इतना तशद्दुद, सीधी फायरिंग, बंदूकें, बर्बादी, यहां तक कि मरने वालों के जनाजे भी नहीं पढ़ने दिए जाते। तो आपने कैसे, किसी ने कैसे प्रोटेस्ट करना है? कोई अपने खानदान को बर्बाद करेगा? कोई अपनी जिंदगी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को अकेला छोड़ के दुनिया से जाएगा? यहां प्रोटेस्ट पे सिर्फ लाठी चार्ज नहीं होता, यहां प्रोटेस्ट पे सीधी फायरिंग्स होती हैं और बंदे मर जाते हैं। और तो फिर 5 अगस्त को क्या हो रहा है? 5 अगस्त को कुछ नहीं होना, उनकी जुर्रत है, वो करके देखेगा प्रोटेस्ट, उससे पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे, सड़कें अच्छा, बंद होंगी। वाक़ई साहब इंतजामात तो एक तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनका जो इंतजामी ढांचा है, इंटरनल सिस्टम है पीटीआई का, वो भी तो बहुत मुंतशिर है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई उनके पास लीडरशिप नहीं है जो लोगों को इकट्ठा करे। देखिए प्रोटेस्ट में ना लीडरशिप बहुत काउंट करती है। उनका काम है कि अपनी आवाम को इकट्ठे करना, उनको ऐसा मोटो देना, उनको ऐसा नारा देना, उनको ऐसा कॉज देना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। वो वजह जब कौम समझ जाती है, लोग समझ जाते हैं, तो वो दीवाना वायर बाहर निकल आते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, अगर उनकी दीवानगी उनके मौत पे खत्म हो तो वो दीवानगी नहीं रहेगी। अच्छा चलें, 5 अगस्त को जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि लीड कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैरिस्टर गौहर करेंगे, अलीमा खान करेंगी। देखिए कोई कहता है जी अलीमा खान दोबारा सियासत में आ रही हैं और वो लोगों से राब्ते कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल फिर आ जाके गौहर साहब रह गए। सियासी जमात को कोई ऐसा लीडर लीड करे जिसका सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है, तो फिर ये भी बहुत। लेकिन ना गौहर साहब का कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना अलीमा खान का, खासतौर पर जब पार्टी बड़ी मुश्किल में है। तो आप मुझे बताएं इमरान खान का कौन सा जी सियासी बैकग्राउंड था? अगर आप ये बात करें तो इमरान खान का भी तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है ना। हाँ, मकबूलियत तो जरूर थी, लेकिन अब उसकी जगह कोई भी आए, जब तक वो उससे अपर पोजीशन में ना हो तो लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलेंगे। आप देख लीजिएगा 5 मार्च का एहतजाज बुरी तरह नाकाम होगा। 5 मार्च का कोई शख्स 5 मार्च को नहीं निकलेगा, कुछ चंद एक लोग निकलेंगे टोलियों में, उनको मार पीट के डंडे मार मार के पुलिस उनके घरों में, और जो अच्छा, बहुत ज्यादा। आप समझते हैं कि ये एहतजाज का वक्त है या ये वक्त है एक स्ट्रेटजी अपनाने का, हिकमत अमली अपनाने का, बैठ के बात करने का? और बहुत दफा इन्हें दावत भी मिली है कि आप बैठें, ये क्यों नहीं बैठते? पीटीआई जो सबसे डे 1 से गलती करती आई है ना, वो ये है कि उन्होंने टेबल पे बैठना नहीं सीखा। जब तक देखिए सियासत किस चीज का नाम है, अभी आपने कहा ना पॉलिटिक्स क्या है, टू गेट द गवर्नमेंट। असल बात है बाय हुक और किसी भी तरह गवर्नमेंट को हासिल किया जाए, ये होता है कमाल। तो आप मुझे ये बताएं, जब तक वो बैठेंगे नहीं, जब तक वो बात नहीं, जब तक मैदान में नहीं होंगे तो क्या कर वो क्या अब, लेकिन उनके पास लीडरशिप भी कोई नहीं है। एहतजाज जब सुने, कभी इस्लामाबाद एहतजाज है, कभी लाहौर एहतजाज है, कभी KPK में एहतजाज, तो उन्होंने देख नहीं लिया एहतजाज से कुछ नहीं होना। भाई एहतजाज करने का वक्त नहीं है, आप अपने कारकुनों को मरवा रहे हैं, आप अपने जो वर्कर्स हैं आप देखें उनकी कितनी तबाही हुई है इनके मुताबिक। तो अब कौन निकलेगा? मिला क्या रिजल्ट? क्या आज तक तो नहीं निकला। अब इससे 5 मार्च से क्या रिजल्ट निकल आएगा? कुछ नहीं निकलना। और आप यकीन कर जाएं पीटीआई के तमाम वर्कर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर बददिल हो चुके हैं। मैं कोई उनको डिसार्ड नहीं करना चाह रहा, ना मैं चाहता हूं कि जी कह रहा हूं कि जी वो बिल्कुल खत्म हो गए, नहीं, लेकिन खौफ इतना है। मैं जो असल बात आपको बता रहा हूं, लोगों में इतना खौफ है। आप मुझे बताएं, जो बंदा जेल चला जाए तो उसके पास घर में जो एक मजदूर है, ज्यादातर तो बेचारे मजदूर, मैंने तो कभी एहतजाज भाई नहीं किया, सीधी सी बात है। आप मुझे बताएं कौन लोअर तबके के लोग एहतजाज करते हैं, और वो रोज जो कमाते हैं ना, वो शाम को अपने घर वही लेके जाते हैं। जो शख्स जब जेल में चला जाता है तो मुझे बताएं उसके घर का क्या बनेगा? लिहाजा एहतजाज इस तरह कामयाब नहीं होते। जिंदा कौमें करती हैं, वो कौमें करती हैं जिनको ये यकीन हो कि मैं अगर जेल में चला गया तो मेरे घर का सिस्टम चलता रहेगा, और जेल में भी मेरे साथ कोई इंसानों वाला। बिल्कुल सही वाक़ई साहब, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया नसीर वाग़ा साहब। आमिर हक़वानी साहब और इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत में एक और पेपर लीक हुआ है और इसकी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। ये मामला क्या है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन, भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और उभरती हुई सुपर पावर करार देता है, लेकिन अगर एक के बाद एक इम्तहानी पर्चे लीक हों, लाखों तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो जाए, नौजवान सड़कों पर निकल आएं और हुकूमत को अपने फैसले वापस लेना पड़े, तो सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं रहता बल्कि पूरे निज़ाम की साख दाव पर लग जाती है। नेट पेपर लीक के मामले ने 20 लाख से ज़ायद तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। एहतजाजी तहरीक ने हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर किया, मुकदमात वापस लेने का ऐलान हुआ, वज़ीर तालीम को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा और मुजाहिरीन ने इसे अपनी नहीं बल्कि इंसाफ की जीत करार दिया। सवाल ये है कि आखिर नौजवानों की आवाज़ में इतनी ताकत कहाँ से आई कि एक मजबूत सियासी हुकूमत को अपने फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ी। क्या ये जेन-ज़ी की सियासी और समाजी बेदारी का ऐलान है? क्या सोशल मीडिया के दौर में नौजवान नस्ल को खामोश कराना अब मुमकिन नहीं रहा? क्या वो वक्त गुजर चुका जब नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था? अगर लाखों नौजवान एक मुतालिबे पर मुत्तहिद हो जाएं तो क्या दुनिया की मजबूत तरीन हुकूमतें भी इनके सामने बेबस हो सकती हैं? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एहतजाज खत्म होने के सिर्फ 2 रोज बाद एक और पेपर लीक होने की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है? क्यों ये र्यूमर सामने आ रही हैं? गुजरात के जामनगर में एक और इम्तहानी पर्चे के व्हाट्सएप पर गर्दिश करने के दावे, क्या ये महज इत्तफाक है या भारतीय तालीमी निज़ाम में मौजूद किसी गहरे बहरान की निशानदही करता है? आखिर ऐसा क्यों है कि एक इम्तिहान खत्म होता है तो दूसरा तनाज़ा जन्म ले लेता है? क्या भारत का तालीमी निज़ाम माफिया के शिकंजे में आ चुका है? क्या लाखों तलबा की मेहनत चंद अफराद की करप्शन की नज़र हो रही है? क्या दुनिया को IT सुपर पावर बनने का ख्वाब दिखाने वाला मुल्क अपने ही नौजवानों को एक शफाफ इम्तिहानी निज़ाम भी फराहम नहीं कर पा रहा? ये सवाल भी अहम है कि अगर एहतजाज ना होता तो क्या मुतालबात तस्लीम किए जाते? अगर नौजवान सड़कों पर ना आते तो क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती? क्या आज की जेन-ज़ी सिर्फ डिजिटल दुनिया की नस्ल नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाली नस्ल बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल मोदी हुकूमत के लिए ये है कि अगर एक एहतजाज ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तो कल को करोड़ों नौजवान अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो गए तो फिर क्या होगा? इसी के साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।